yesterday, which I observed, you have done the work very properly and excellently, and I'm sure you have understood. And before to start the next part of this, I would like to recall what we have done. All of you have made the structure, you are aware with the structure of all the nitrogenous bases, that is purine and pyrimidine. Then you will make the nucleosides by joining nucleoside, and we have also made the nucleoside. So just to recall that nucleoside where the nitrogenous base, just for recalling, I am telling you nitrogenous base plus pentose sugar. Simply I am writing sugar. And when the phosphate gets joined, that was the nucleotide. So before to start the polynucleotide chain, let us know the name of the nucleosides and nucleotide. For example, you all are the students of the NEET. That is a common thing. That is just like nucleotide. But here, our name is different. Muhammad Abidan, Janpreet, Uruj, Nerijas, Gulam. So like that, there are 5 bases: adenine, guanine, cytosine, thymine, and uracil. So nucleosides and nucleotide form from them. Name will be different. Nucleoside and nucleotide is a common name. So now I am making the table and I am giving you the hints. I think you will be able to make the name after giving the hints as you have done yesterday. And I am very happy to see the yesterday's work. So, like the subheading, various nucleosides and nucleotides. You make a full sheet. On full sheet, here serial number, you can give maybe little bit number. Then here write down the bases. Then here nucleoside. And here in heading you write nucleotide. I have little space, so I will. This is the space for nucleotide, right? Okay. We have 5 bases. 1, 2, 3, 4, and I am writing the single 1 letter name of the bases A, because according to IUPAC system, they are represented by single letter. And now the nucleoside adenine with sugar, what will we call it? So again, let us have a technique to name the nucleoside. nucleoside नाम डालने के लिए जैसे प्यूरिन, अब इसको यहाँ नहीं लिखना, ये रफ पे लिखना. For making nucleoside, in the last of purine आप suffix add करो sign. अब यदि हम ये टेक्निक देख ले तो can make all the name. और pyrimidine base के last 4 letter dine. So you remember cyanidine. प्यूरिन के बाद में साइन, pyrimidine के लास्ट में डाइन. अब जैसे एक मैं लिखता हूं adenine is a purine, so its nucleoside will be adenosine. Adenosine. Likewise, give the name of guanine. Any student, come on.
I will give the time to make the table. I repeat it. प्यूरीन बेस के लास्ट में एडिनोसाइड न्यूक्लियोसाइड बनाने के लिए साइन जोड़ना है। तो एडेनिन में साइन जोड़ दिया एडिनोसाइन। तो गुआनिन में क्या होगा? वेरी गुड, जनप्रीत हैज गिवन आंसर गुड, गुआनोसाइन। देखिए मेरा काम कितना आसान हो गया, कम हो रहा है मेरा काम। यू पीपल आर योरसेल्फ डूइंग। अब ये दीज आर पाइरीमिडीन, तो यहाँ पर ऐड करना होगा साइटी फिर डाइन DINE, फिर थायमीन है। तो देखो बच्चे नाम, थायमीन का न्यूक्लियोसाइड क्या नाम होगा? वेरी गुड, देखो आप लिखते जाओ, मैं लिखूंगा आप यूरासिल। थायमीडाइन गुड, और यूरासिल के साथ यूरिडाइन हो जाता है बेटा, ठीक है। वी हैव अंडरस्टूड द मैटर यू डिड। अब यहाँ देखिए, अब देखो इसमें कोई रट्टा नहीं लगानी है। अब ये कई बार नेम आता है, कई जगह आपने यूज किया, मैं आपको रिकॉल कराऊंगा इसके बाद जो कहाँ कहाँ आपने यूज किया है। तो ये साइन डाइन का फॉर्मूला। अब इसमें न्यूक्लियोटाइड एक फॉस्फेट जुड़ गया था, हमने फिर पर एक फॉस्फेट जोड़ा था इसमें। तो किसमें फॉस्फेट जोड़ा था? अपने एडिनोसाइन में। तो इनका नाम हो गया एडिनोसाइन। एक ही फॉस्फेट आपने जोड़ा था, तो मोनोफॉस्फेट, शॉर्ट में AMP। अब धीरे धीरे, अभी तो पहले इस टेबल को कंप्लीट करो बच्चे। यदि इसमें 2 फॉस्फेट जोड़ दोगे तो एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट ADP, और 3 फॉस्फेट जोड़ देंगे तो यू नो ATP। तो अब इस टेबल कंप्लीट करने के बाद मैं आपको हिंट्स दूंगा, आपको ATP के स्ट्रक्चर बन जाएंगे अपने आप। चलो पहले नाम करें, तो एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। अब बच्चे इसका नाम लिखो, कम ऑन। एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट हो गया, वो तो हो गया, ठीक है। गुआनिन के साथ, गुआनिन के साथ हाँ GMP, लेकिन पूरा नाम पहले लिखो, गुआनोसाइन मोनोफॉस्फेट GMP। साइटिडीन मोनोफॉस्फेट CMP। थाइमिडीन monophosphate TMP, not very popular word, but uridine monophosphate UMP। अब एक चीज रिकॉल करनी है इसमें, आई थिंक टेबल आपने बना दिया। अब ये अपने कल आपको हमने स्क्रीन पे दिखाया था चैप्टर नंबर जो आपकी है मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स का। तो देखो बच्चे, ये थायमिडीन ये तो है ओनली फॉर DNA, इसमें तो कोई चेंज हम कर नहीं सकते, ये ओनली फॉर RNA है। बट these 3 are common for DNA and RNA। तो यदि AMP DNA का है या ये DNA का है, तो आपको प्रीफिक्स लगानी पड़ेगी डीऑक्सी, बुक में मिलेगा डीऑक्सी। तो अभी नॉर्मल बना लिया, यदि आप यहाँ डीऑक्सी एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट कर रहे हो तो इसका मतलब यहाँ शुगर जो है डीऑक्सी है। तो आप कहीं नीचे लिख लो
prefix deoxy should be added. Prefix माने जो पहले आती है in AMP, GMP and CMP for DNA. हो गया nomenclature. अब देखो यहाँ पर AMP आया, GMP आया, इसमें अब इसमें क्या है, तो जब आप जेनेटिक्स में पढ़े होंगे ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, तो एक वर्ड आया होगा, अब इसके दूसरा नाम भी है, वो मैं लिख देता हूँ। और 11th क्लास के पेज जो मैं बताया था वहां भी लिखा है, एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट इज आल्सो कॉल्ड एज एडिनाइलिक एसिड. इट इज आल्सो कॉल्ड एज guanilic acid. It is also called as cytidyllic acid. It is also called as thymidyllic acid. It is also uridylic acid. अब जब आपने देखो ये लिख लिया नाम, फिर मैं आपको बताऊं, फर्स्ट यू कंप्लीट द नोमेनक्लेचर. अब मैं आपको बताऊं ये नाम आपने कहाँ 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 का क्रॉस किया होगा. इफ यू हैव डन, अब लिख देंगे डन, फिर मैं आगे चलता हूँ. अब बोलो बच्चे, ये सारी मैटर में कोई रट्टा नहीं लगाना है, समझना है. अब हम सोचे ये नाम कहाँ कहाँ आया था पहले. जब हमने स्टार्ट किया तो आप समझ रहे हैं, जो एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन इज ओनली फॉर डीएनए एंड आरएनए. अब थिंक फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, छोटे बच्चे के क्लास से आप सुनते आ रहे हैं, जो हमारी एनर्जी जो है एटीपी है, एटीपी है. बस नाम सुनते हैं एटीपी एटीपी. अब क्या है, तो इसी में एक फॉस्फेट आ जाएगा तो एडीपी, एक फॉस्फेट और आ जाएगा तो एटीपी. नाउ आई थिंक यू कैन मेक द स्ट्रक्चर ऑफ एटीपी. अब इसी में जीडीपी जीटीपी भी होगा. तो हो गए सर, हमको कहाँ मतलब है जीडीपी जीटीपी से. तो बच्चे आप जब 11th क्लास में रिस्पिरेशन पढ़ रहे होंगे, तो यदि आपके पास बुक हो तो पेज नंबर 232 क्रेब साइकिल पर देखिए, जीटीपी होगा. ये जीटीपी आपको अभी नोट करते जाए, बाद में देख लेना. जीटीपी और जीडीपी वर्ड आएगा 11th क्लास के 232 पेज पर. तो उस समय जब हम क्रेब साइकिल डिस्कस करेंगे और यू नो दिस वन, तो आपके लिए आसान हो जाएगा. एटीपी तो कई जगह आएगी, फोटोसिंथेसिस में आएगी, रिस्पिरेशन में आएगी. एनर्जी करेंसी यही है हमारी. और फोटोसिंथेसिस में पढ़ेंगे जो ये एनर्जी सन से आई है, कैसे आई है, तो ये पता रहेगा तो यू कैन अंडरस्टैंड कि कैसे आई. तो ये वर्ड आपकी कई जगह आएगा. हम 11th के लास्ट चैप्टर हार्मोन पढ़ेंगे, वहां पर लिखा होगा साइक्लिक एएमपी. तो हम कैसे बता पाएंगे बच्चे, यदि एएमपी ना जानते होंगे, तो यहाँ पर वर्ड होगा साइक्लिक इंफॉर्मेशन. तो आई थिंक नाउ दिस टेबल इज कंप्लीट. टेबल इज कंप्लीट, डन. सारे बच्चे नाम बना लेंगे अपने आप. अभिदन, गुलाम, जयरा, यस यस गुड. अब देखो धीरे धीरे क्या हो गया, तो फर्स्ट सेकेंड फर्स्ट में थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि स्टार्ट किया था. अब आप चलेंगे कंफर्टेबल, अपने आप हो जाएगी, मेरा काम ही नहीं पड़ेगा, मैं थोड़ा हिंट दूंगा, सब बनेगा. तो एक ही है, जो किसी भी सब्जेक्ट में यदि हम बच्चे को पहली सीढ़ी दिखा दिया, ये सीढ़ी बच्चा है, तो ऑटोमेटिकली बच्चा अपने भी चढ़ सकता
और सीधे टिप पर जाके बैठा दिया, वो सीढ़ी कहाँ से आई बच्चा देख ही नहीं रहा है। तो ये हर चैप्टर में होती है। अब हम आगे की बात करें, बिफोर टू कम और पॉलीन्यूक्लियोटाइड, इसको मैं मिटाऊं। अब ये समझ में आ गई हमारे पास ये डीएनए आरएनए में तो आएंगे ही आएंगे ये सारे, बट इसके अलावा भी डिफरेंट कंपाउंड में ये सारे आते हैं। अब फॉर योर इंटरेस्ट, देखो तो एटीपी के स्ट्रक्चर आप बना पाओगे क्या? बना लो, बना के देखो तो। मैं हिंट्स देता हूँ फॉर इंटरेस्ट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एटीपी, क्योंकि हर समय ये छोटे बच्चे से 1-2 से सूझते आ रहे हैं एटीपी एटीपी एटीपी। तो अब देखो बच्चा, ये एटीपी के लिए मैं बात करूँ तो ऑल ऑफ यू नो, ये हम लोगों ने कल कर लिया था, पहले कर लिया था। यहाँ CH2OH। अब यहाँ पर मैं स्ट्रक्चर नहीं बना के सीधे ए लिख दिया आपको। तो ये कंपाउंड क्या हो गया, फिर रिवीजन करें हम, इट इज एडिनोसाइन। अब हम पूरी बात लिखते हैं, एडिनोसाइन। उस समय हमने ये बातें नहीं लिखी। नाउ एक किया था हमने, एक फॉस्फेट आ गई। अब कल डिस्कस हो गई थी, इनकी OH और इनकी H मिलकर एक मॉलिक्यूल वाटर निकाल दिया। तो ये स्ट्रक्चर बन गई, ये जुड़ गया। नाउ अब यही थी AMP, यहां से यहां तक आ गया AMP, एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। अब दूसरी फॉस्फेट यहां आ जाए, देखो कितनी आसान है। अब इनकी OH, एक मॉलिक्यूल वाटर निकाल देगा, राइट? यहां से एक मॉलिक्यूल वाटर निकल आए, तो ये स्ट्रक्चर क्या होगा, ये ऑक्सीजन से जुड़ेगी। आई थिंक आपकी समझ में आ गई है, तो अब मैं लिख सकता हूँ डायरेक्ट। तो अब यहां से यहाँ 2 आ गया, अब इसका नाम आप क्या देंगे, ADP, एडिनोसाइन डाई फॉस्फेट, 2 फॉस्फेट। इसी तरह तीसरा आके जोड़ दे, यहाँ जगह का मैं एक ही बार जोड़ देता हूँ, 3rd फॉस्फेट। ये यहाँ से यहाँ बच्चा हो गया ATP, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। हम कहते हैं जब हमारी एनर्जी मिलती है तो ATP ब्रेक डाउन हो जाता है ADP में प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और ये जब दोनों जुड़ते हैं तो ATP बनता है। ये हर जगह फोटोसिंथेसिस रिस्पिरेशन में आएगा। तो यही बाउंड को, ये जो एस्टर बाउंड है, इनका टूटना और जोड़ना, और ऑलवेज डेली हर काम के लिए इसी, ये जो बाउंड है इसको अल्फा बीटा एंड गामा फॉस्फेट बोलते हैं। तो इसी फॉस्फेट की एनर्जी आपको हर काम के लिए मिलती है, हर काम के लिए मिलती है। अब देखो कितनी आसान है स्ट्रक्चर। तो जब हम फोटोसिंथेसिस से रिस्पिरेशन करेंगे तो मुझे पता है जो यहाँ पर ये फॉस्फेट जुड़ रही है। अब यदि हम इसका एनर्जेटिक्स कर लेंगे तो भाई कितनी एनर्जी निकल रही है तो आप कैलकुलेट कर लोगे। वो बाद में बात करेंगे, जो एक ग्लूकोज से कितनी ATP बनती है, एक में कितना एनर्जी है, टोटल कितना कैलोरी लिख लेगा। अब देखिए ATP का स्ट्रक्चर क्लियर हो गया आपको। यहीं पर गुआनिन लगा देंगे तो वो GTP हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर बनने के बाद अब यहाँ से कुछ मैं क्वेश्चन ही डिराइव कर दूंगा। अब ये बन गई, बट फॉर योर इंफॉर्मेशन, व्हेन इट इज ATP तो शुगर हमेशा राइबोज ही होगा। डिऑक्सी राइबोज सिर्फ DNA में होता है, और ATP है तो फॉस्फेट जो है वो 5 से ही ज्वाइन हुई, नॉट फ्रॉम द 3rd। नंबर 2, I repeat it, if it is ATP, sugar is always ribose, deoxyribose only in DNA.
and phosphate always remain attached to the carbon number 5. और यही टूट टूट के आपको एनर्जी देती है और बनती रहती है, टूटती रहती है, बनती रहती है. अब देयर आर सम क्वेश्चंस फ्रॉम एटीपी इटसेल्फ. मैं यहाँ क्वेश्चन लिखता हूँ और आप आंसर जैसे कल बता रहे थे और अभी बता रहे हो, आप क्वेश्चन बनाओगे. अब देखो एक चीज और आपको बता दूं, जब आपने पढ़ा है पेज नंबर 106 12th क्लास में, तो डीएनए रेप्लिकेशन में लिखा हुआ है लाइन, जब डीएनए की रेप्लिकेशन होती है तो डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड्स आते हैं और 2 बॉन्ड टूट के बनाता है. एनर्जी देने के लिए एक ही बॉन्ड होती है, जब लेकिन डीएनए के सिंथेसिस में वो हाईली एनर्जेटिक होता है, दोनों बॉन्ड टूट के होता है. जब हम उस पे आएंगे तब ये बताएंगे उसी केसेस में दोनों बॉन्ड टूटते हैं और ये जुड़ता है डीएनए रेप्लिकेशन में. दैट्स व्हाई आई एम गिविंग एम्फेसिस ऑन दैट. चलिए उस समय डिस्कस करेंगे. अब हम मैंने क्वेश्चन का आंसर दे दो. डीएनए के स्ट्रक्चर है, हाउ मेनी वाटर molecules will be released in complete synthesis of ATP. फातिमा थोड़ा फिर सोचो. अप्रोच तो ठीक मारा लेकिन फिर सोचे, अभी सही आंसर नहीं आया. समझ में आ रही है आप लोगों को? थोड़ा सा और. मेरा क्वेश्चन है, अरे साहिल आप एनर्जी की बात तो नहीं सोच रहे हो. हाँ अब आ गए आप, सही सही आ गए. अब इसके मोहम्मद अबिदन आपने थोड़ा मिसअंडरस्टूड किया क्वेश्चन. बच्चे सही हो गए. देखो देखो ठीक है, आंसर आ रहा है 3 4 3 4 3 4. फोर इज द करेक्ट आंसर. देखो बच्चा, ये था एक बॉन्ड यहाँ बना था एन ग्लाइकोसिडिक, जिसको छोड़ रहे हो आप लोग, यहाँ कितनी कर रहे हो. तो पहला तो यहाँ निकला था एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में, दूसरा H2O मॉलिक्यूल यहाँ निकला, तीसरा यहाँ निकला, चौथा यहाँ निकला. तो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स हैव गिवन करेक्ट आंसर. गुड, वेरी गुड. अब दूसरा क्वेश्चन हो गया. अब मैं यहाँ नहीं बोल रहा हूँ, इसमें कौन कौन से केमिकल बाउंड प्रेजेंट, द टाइप ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट इन एटीपी. which of the following statement is correct? Yeah, types of bound present in ATP. My question is types of chemical bound present in ATP. Yeah, answer types of bound. You know the answer. अभी बहुत सही आंसर नहीं आ रहा है बच्चे. ये बात क्लियर है, समझ में आ रही है आपको? यस. अब देखो तो बच्चे, आप मोहम्मद आबिदन आप आंसर दे रहे हैं बारी बारी से. सही आंसर दिया आपने. देखो एक तो यहाँ पर बाउंड हो गया एन ग्लाइकोसिडिक, एन ग्लाइकोसिडिक. एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है एक, ये इनका टोटल नंबर 1, ये नंबर में भी पूछते. और एस्टर बाउंड या फॉस्फोएस्टर बाउंड, नॉट डाइएस्टर, दैट इज 3, टोटल 4. जहां जहां से वाटर निकला. ये एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हो गया, इसको एस्टर बॉन्ड कहे. फॉस्फोएस्टर, डाइएस्टर नहीं हुआ ये.
डाइएस्टर जब डीएनए के स्ट्रक्चर में आएंगे, अभी आएंगे तो डाइएस्टर होगा। तो आंसर इज ओके, एन ग्लाइकोसिडिक एंड 3 एस्टर्स और फॉस्फोएस्टर्स, नॉट डाइएस्टर्स। तो इसी तरह से ये स्ट्रक्चर बन गए। अब ये कंप्लीट हो गई, अब इसको मिटाता हूँ। इसको मैं मिटा रहा हूं, अब आपको रिकॉल करा रहा हूं जो आप, इफ यू हैव स्टडीड इफ हॉर्मोन्स इन 11th क्लास, तो यदि आप ह्यूमन हार्मोन पढ़ा है हाँ या ना, तब मैं एक क्वेश्चन बनाऊंगा। हैव यू स्टडीड हार्मोन इन 11th क्लास? यस। तो जनप्रीत भी पढ़े हैं, फातिमा भी पढ़े हैं, ठीक है भैया। तो हम आपको ले चलते हैं 11th क्लास के हार्मोन पर 339 पेज। मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन में, मैकेनिज्म नहीं बताऊंगा मैं अभी, केमिकल बताऊंगा। वहां पर लिखा हुआ है CAMP। कॉपी पर आप लिख लेंगे 11th क्लास 339 इज रिटन CAMP। सी का मतलब है साइक्लिक AMP। मोहसिना गुलफान बहुत अच्छे से हार्मोन पढ़ लिए हैं, ठीक है जी। लेकिन साइक्लिक AMP का रोल, ये कैसे इंफॉर्मेशन देता है उसको देखिए। इंफॉर्मेशन कैसे देगा वो तो मैं बाद में बताऊंगा। ये साइक्लिक का मतलब क्या हो गया, ये देखो, ये 1 2 3 4 5, ये पांचवा है, AMP है, यह है AMP। अब आपके क्वेश्चन आ रही है साइक्लिक AMP। तो साइक्लिक AMP में क्या होती है, ये OH और ये H भी मिलकर एक मॉलिक्यूल वाटर निकाल देगा, एक ही फॉस्फेट हो, निकाल दिया। एक ही फॉस्फेट कार्बन नंबर 5 से इनकी दूसरी OH थर्ड से निकल गया, तो बच्चे क्या स्ट्रक्चर बन गया, ये H तो रहेगा ही, इधर H, ये यूं और यूं। अब देखो ये साइक्लिक वे में आ गई ना, तो दिस इज कॉल्ड एज CAMP। और साइक्लिक AMP, और ये काम करता है इंफॉर्मेशन मॉलिक्यूल। तो DNA RNA नहीं है जी, ये इंफॉर्मेशन मॉलिक्यूल है, हार्मोन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। अब उस समय यदि मुझे कुछ बोलना होगा तो ये मैसेंजर कैसे काम करता है, क्या मैसेज देता है, उस समय बताऊंगा ना। तो ये स्ट्रक्चर क्लियर हो, तो आप यहाँ लिख के अपनी बुक पे जाके अपनी कॉपी पर लिख लो, वहां से KMP लिख लो, काम खत्म। तब आपको मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन समझ में आएगी। जनरली क्या होता है, तो हार्मोन याद रहता है बच्चों, लेकिन लास्ट पेज पर जो मैकेनिज्म है वहां बहुत गौर नहीं करते। और नीट में क्वेश्चन जो है बाहर से नहीं उठाता, ये उठाता वही से है, लेकिन एकदम कॉन्सेप्ट उठा ले। आई थिंक नाउ यू कैन रियलाइजिंग दैट हाउ बायोमोलिक्यूल्स आर इम्पोर्टेंट। आई फील फर्स्ट एक आध दिन में थोड़ी सी आपकी मशक्कत आई थी, परेशानी हुई थी, बट कल से आप लोग बहुत सही आंसर दे रहे हैं और समझ में आ रही है। अब देखो हम आते हैं DNA। अब देखो, अब हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड, इस ये हमारा तक काम हो गया। अब जो हमने 12th क्लास की जेनेटिक्स में दिखाया था पॉलीन्यूक्लियोटाइड, अब तो उसमें आइए। पूरा छोटा छोटा स्ट्रक्चर बनाता हूँ, तो क्योंकि अब यहाँ पर सही होना। अब यहाँ CH2OH, और बच्चे यहाँ कोई भी बेस हो सकता है, तो मैं सीधे B लिखता हूँ। B मीन्स बेस, इट कुड बी एनीथिंग, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन। ये हर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होगा, इसकी कोई सिग्निफिकेंस यहाँ नहीं है। सिर्फ B मीन बेस, हमको देखना है पॉलीन्यूक्लियोटाइड।
तो ऑफ कोर्स अब यहाँ से यदि ये डीएनए है या आरएनए का है तो यहीं से क्लियर हो जाएगी। अब यहाँ OH और यहाँ H, ये एक न्यूक्लियोसाइड हो, ये दूसरा न्यूक्लियोसाइड में यहाँ अपना। अब यहाँ भी बेस, यहाँ OH, यहाँ H। एक और हमें 3 ही हटेगा बच्चे, 3। आपके 4 हो तो आप 4 बना लेना। यहाँ भी बेस। अब देखो ये भी एक न्यूक्लियोसाइड, ये भी न्यूक्लियोसाइड, ये भी न्यूक्लियोसाइड। अब जब पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन बनता है, पॉली मीन्स मेनी, तब देखिए एक फॉस्फेट आया, and definition I told you, phosphate get attached at carbon number 3 and or 5. 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब यहाँ देखो इनकी OH और इनकी H मिला, एक मॉलिक्यूल वाटर निकल गया। फिर इनकी OH H मिल गया, एक मॉलिक्यूल वाटर निकल गया। सेम रिएक्शन यहाँ हो। तो समझने के लिए इसको मैं एज इट इज छोड़ रहा हूं तो क्या रिएक्शन हुआ होगा, और यहाँ पर क्या करता हूं तो रिएक्शन होते हुए ये OH और H फिर इस तरह एक मॉलिक्यूल वाटर निकाल देगा, तो सिर्फ ऑक्सीजन बचेगा। क्यों? सेम दिस OH and H will combine, will release one water molecule। तो ये हो गया। अब जो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आप यूज करते आ रहे थे वर्ड फॉस्फोडाइएस्टर, ये हुआ बच्चा फॉस्फोडाइएस्टर। ये बाउंड H, फॉस्फोडाइएस्टर बाउंड। तो 2 न्यूक्लियोसाइड्स। अब यहाँ पहले आप बना लेंगे, तब यहाँ पर इनका ऑब्जेक्टिव क्या बनेगा वो मैं लिखता हूँ, डिस्कस करूंगा। पहले आप बना लो, हो जाए तो अब लिख देना डन। 2 न्यूक्लियोसाइड्स remain joined by one phosphate। और भी मैटर आएगा, पहले इसको आप बना लो। मेरे पास 3 की ही जगह थी, 3 भी बना लिया मैं। इसके बाद आप 4 5 बना सकते, और यही स्ट्रक्चर आपकी 12th क्लास की 96 पेज पर है। which you might have studied during the board exam। डन। चलो फातिमा ने कर लिया, सलील बैतू ने कर लिया, और बच्चे गुलाम हमसन भी कर लिए। थोड़ा फटाफट लिख दो, डन डन। बहुत सारे बच्चे हैं जो कर लिखते हैं, फटाफट लिख दो, समझ में आ जाएगी। आप सबने कर लिया, जेरा भी कर लिया, अब्दुल ने भी कर लिया। क्विक क्विक और अंडरस्टूड द मैटर। ठीक है, ठीक है बच्चे। अब यहाँ से ऑब्जेक्टिव डिराइव होगा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। Two nucleosides remain joined by
either phosphodiester bound or single phosphate, matter is the same. आप स्टेटमेंट लिख लो, which of the following statement true, तो आप पहले करेक्ट स्टेटमेंट लिख लीजिए. Two nucleosides remain joined by phosphodiester bond. दूसरी वर्ड में one phosphate joins two nucleosides. One phosphate joins two nucleosides. अब यहाँ पर देखो, जो बीच में आएगा उनके थर्ड और फिफ्थ दोनों इन्वॉल्व हो रहा है. तो आई टोल्ड यू इन द डेफिनेशन, phosphate get attached at carbon number 3 and or 5. तो वो जितनी बीच में जितने बेस होंगे सब के लिए एंड आएगा, क्योंकि इधर से भी फिफ्थ भी जोड़ेगा, थर्ड भी जोड़ेगा, दोनों एक फॉस्फेट में फॉस्फेट इधर भी जोड़ लिया, इधर भी जोड़ते गए. लेकिन अल्टीमेटली एक एंड आएगा ऊपर, एक एंड जाएगा दूसरा. मान लो मैंने, आप जो बच्चे ग्रुप है सबको मैं काम फील्ड में खड़ा हो जाओ भाई, एक एक हाथ ऐसे करके, तो ऑटोमेटिकली सब हाथ पे हाथ जोड़ के खड़े हो गए. तो किसी एक एंड पर एक बच्चे का लेफ्ट हैंड फ्री होगा तो दूसरे बच्चे का राइट हैंड फ्री होगा. ठीक है. यदि आप सीधे खड़े हो तो कहोगे सर मैं ऐसे घूम जाऊंगा, तब तो गड़बड़ है, सीधे सीधे खड़े. तो व्हाट आई मीन टू से, अब यहाँ पर बात करूंगा पोलैरिटी का. जिसको आपने पढ़ा होगा, पेज नंबर रिकॉल करेंगे. अभी मैं नहीं खोल रहा हूँ कि एट ए टाइम दोनों चीज आप शेयर नहीं कर पाते हैं, खोलने के बाद फिर बता दूंगा. 12th के पेज नंबर 96 के लास्ट लाइन और 97 का फर्स्ट सेकंड की बात करूँ. पोलैरिटी जिस पर की जेनेटिक्स स्टडी करके पूरी. अब यहाँ पर देखो, यदि ये पूरी एक डीएनए का स्टैंड है, ऐसे आप लिखते हैं यू ऐसे स्टैंड आ रहा है, तो वन साइड यू आर रिटिंग 5 प्राइम एंड थर्ड अनदर को लिखते 3 प्राइम. तो ऑब्वियसली जब ये लंबे चेन होगा तो लास्ट में आएगा, इनकी थर्ड कार्बन पर देयर विल बी नो फॉस्फेट. इफ देयर इज नो फॉस्फेट तो डीएनए या आरएनए के इस एंड को बोलेंगे 3 प्राइम. तो हर जगह डीएनए रेप्लिकेशन में, प्रोटीन सिंथेसिस में देखा होगा 3-5-5-3. तो दिस इज द मीनिंग, और इसको बोलते हैं पोलैरिटी, यानी पोल. जैसे कि आपकी मैग्नेट है, मैग्नेट में आप बोलते हैं नॉर्थ पोल, साउथ पोल, प्लस माइनस. तो डीएनए आरएनए में उनके एक एंड को बोलेंगे 3, दूसरे को बोलेंगे 5. तो अब यदि आपके पास बुक हो 96 पेज लास्ट पैरा और 797 फर्स्ट पैरा, तो लाइन लिखा है ए पॉलीमर द स्पॉक. ये पॉलीमर, तो ये पॉलीमर हुआ ना, इनके मोनोमर हुआ न्यूक्लियोटाइड, और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ गए तो आपने बोला पॉलीन्यूक्लियोटाइड. तो बुक में ये लाइन है ए पॉलीमर, यहां से शुरू किया, ए पॉलीमर स्पॉक हैज 5 डैश ओपेनेंट. तो अब एक चीज क्या होती है, थर्ड पर क्या है, फॉस्फेट नहीं है, आपको 3 बोला, लेकिन जो लास्ट में होता है फिफ्थ, इस पर एक फॉस्फेट का कैप बन के बैठ जाता है, इस पर फॉस्फेट एक बैठ जाता है. तो बुक में वर्ड होगा 5 डैश है फॉस्फेट मॉइटी, फॉस्फेट मॉइटी, मतलब एक फिफ्थ पर एक कैप की तरफ फॉस्फेट बैठा रहता है. तो ये हो गई पोलैरिटी. यू कैन चेक इन दिस टाइम. आर यू कंफर्टेबल अप टू दिस? तो फिर मैं दूसरी मैटर यहीं से डिस्कस करूँ. गुरुज को प्रॉब्लम है,
पोलैरिटी में। और सबका ठीक है? प्लीज रिपीट। ठीक है जी। देखो बच्चे, रोज देखिए, अब ये 1 2 3 4 5 आएगा। अब जो सबसे नीचे वाली आई, इसकी थर्ड पर देखो फॉस्फेट नहीं है। तो थर्ड पर फॉस्फेट नहीं है, तो इस एंड को जब आप डीएनए का स्ट्रक्चर बनाते हो तो लाइन खींचते, यहाँ आपने 3 डैश लिख दिया। इसका मतलब हो गया, तो सबसे नीचे वाला जो इनका शुगर है, उसके थर्ड पर फॉस्फेट नहीं है, उसके थर्ड पर फॉस्फेट नहीं है। लेकिन बीच वाला जो है, इनके थर्ड और फिफ्थ सब पर फॉस्फेट है। तो सबसे टॉप पर एक होगा, उसके ऊपर पर एक फॉस्फेट कैप की तरह बैठ जाएगा और आगे कुछ नहीं, बस उसे बोलेंगे फाइव। उसी के लिए बुक में है फॉस्फेट मोइटी। हम वो लाइन आपको दिखाएंगे। फॉस्फेट मोइटी का मतलब हो गया मॉलिक्यूल। फॉस्फेट मोइटी का मतलब हो गया मॉलिक्यूल, एक कैप की तरह बैठ जाता है, लेकिन उसके ऊपर कोई भी न्यूक्लियोसाइड्स नहीं। क्लियर उड़ोज? ठीक है। अब इसको मिटा के, अब यहीं से 96 पेज पर खोलेंगे तो ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। अब वहीं पर हमारा एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, जो हम पेज शेयर करके बता देंगे। जो अब वहां पर क्या करेगा, यहाँ पर कर दिया ए, इनको कर दिया बी, तो आपको आइडेंटिफाई करना है कौन बॉन्ड क्या है। 96 पेज पर जो स्ट्रक्चर बना है, उसमें बेस में टी लिखा हुआ है, मतलब टी का मतलब थाइमिन। इसका मतलब जितना शुगर वहां है वो डिऑक्सी है। चलिए अब हम इस पर एक बात करते हैं। एक वर्ड जो यूज किया हुआ है बुक में, सुगर फॉस्फेट बैकबोन, इसकी बात करें। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, हेडिंग लिखिएगा सुगर फॉस्फेट बैकबोन। तो व्हाट इज द, जैसे हमारी बैकबोन हो रही है, तो ये सुगर और फॉस्फेट बैकबोन की तरफ फॉर्म कैसे करना है। तो मान लीजिए ये पूरा का पूरा जो सुगर है, इसके लिए मैं यहाँ पर मैं इसको शुगर को ऐसे लिख रहा हूँ, और इस पूरी फॉस्फेट के लिए मैं पी लिखूंगा। तो इस शुगर के लिए यहाँ लिख दिया एस, इस पूरे बॉन्ड के लिए स्मॉल में लिख दिया पी। फिर ये दूसरा शुगर यहाँ एस, फिर पी, फिर ये शुगर एस, और फिर ये आपने वर्ड यूज किया शुगर फॉस्फेट बैकबोन। अब देखो यहाँ, तो इस तरह से ये शुगर, ये फॉस्फेट, ये शुगर, ये फॉस्फेट, ये शुगर, तो ये जस्ट लाइक ये बैकबोन है बच्चे, हमारी बैकबोन है। और उससे देखो बेस एलिवेट हो रहा है, तो ये बेस एलिवेट हो रहा है यहाँ। अब यहाँ से कोई भी बेस आ जाए, मान लो एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, यहाँ गुआनिन, एडेनिन, तो यहाँ से यहाँ जो हुई दैट इज शुगर। इसको आप अब अपना जो स्ट्रक्चर है वहां पर लिख लें, शुगर फॉस्फेट बैकबोन, शुगर फॉस्फेट बैकबोन, इसी को मैं रिप्रेजेंट ऐसे किया। और ये जेनेटिक्स में वर्ड यूज किया हुआ है। क्लियर? शुगर फॉस्फेट बैकबोन इज क्लियर। अब ये कर लेंगे तो आपको बड़ी आसानी हो जाएगी। फिर अभी मैं डीएनए डबल हेलिक्स में आया नहीं, अब आऊंगा।
मोहम्मद शमीम, क्लियर हो गए मैटर? ठीक है, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, ये क्लियर हो गई। ये है शुगर फॉस्फेट बैकबोन, इसको यहाँ पी और एस। अब वापस आता हूँ, अब मैं सिंप्लीफाई करता जा रहा हूँ। अब ये शुगर फॉस्फेट बैकबोन के लिए हम एक लाइन खींचते हैं, सिंगल लाइन, और होल बैकबोन हमने लाइन खींच लिया। तो अब तो आपको लिखना पड़ेगा ये 3 और 5, इससे पता नहीं चलेगा। अब यहां से बेस एलिवेट हो रहे हैं, यहाँ ए, यहाँ टी, यहाँ सी, यहाँ जी, कोई भी। तो अब ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन हो गया, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। जेनेटिक बच्चे आपका तो शुरू हो ही गया, अभी मैं खोल के दिखा रहा हूँ। फातिमा, जेनेटिक्स तो ही चल रही है आपकी, मैं अभी खोल रहा हूँ पेज, आपको बता। एक मिनट होल्ड करें, फातिमा को लग रहा है जेनेटिक्स हो गई है, बिना इससे कैसे जेनेटिक्स होता है? जी जेनेटिक्स ही तो मैं कर रहा हूँ, एक मिनट आपको। अब थोड़ा सा आप देखिए जो आपने जेनेटिक्स किया कि नहीं, यहाँ से देखो ये डीएनए। अभी हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे जी फातिमा? स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। तो फातिमा तो हम लोग कर ही रहे हैं। ये देखो, ये देखो, पढ़ते जाओ, मैं अब जहाँ बोल दिया तो मैं जहाँ तक किया हूँ बता रहा हूँ। अब ये लाइन पढ़ के देखिए तो आप, देयर आर टू टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस स्पेसेस। अब यदि आपके सामने आ रही है तो आप पढ़ के देखिए, आर एबल टू अंडरस्टैंड। ये कल कर लिया था, अभी हमने ये डिस्कस किया है, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। फातिमा देखो, अब आपकी कंपटीशन में मान लो इसको लिख दिया ए, इसको लिख दिया एक्स, तो ये एक्स लिख दिया तो एक्स विल बी। अब आपको ऑप्शन आ रहा है राइबोज, डिऑक्सी राइबोज। तो ये कैसे पकड़ोगे? यहाँ देखिए, यहाँ थाइमिन लगा हुआ, तो थाइमिन इज ओनली फाउंड इन द डीएनए। सो यदि इसके शुगर को लिख रहा है एक्स, तो एक्स विल बी डिऑक्सी राइबोज। तो डायरेक्ट इसी से क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखो बच्चे, अभी जो मैं बनाया ये बाउंड यहाँ पर लिख देंगे हम पी। यह देखो नेट में आपका सीधे सीधे बुक से प्रिंट होता है, कॉन्सेप्ट इज गिवन हियर, और यहाँ इसको खींच दिया। तो ये जितने हैं वो एन ग्लाइकोसिटिक है। ये देखिए, अब यदि आपके पास बुक हो तो अपना बना लेना, ये एन ग्लाइकोसिटिक। और यहाँ से यहाँ जो बाउंड है ये फॉस्फोडाइस्टर बाउंड है। अब यहाँ पर लिखा 3' इधर आ गया 5। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ लाइन पढ़ो तो अभी मैं बताया था व्हाट इज पोलैरिटी। फातिमा देखो, a polymer thus formed has one end free phosphate, got 3' and 5' ribose sugar, which referred as 5' polynucleotide chain. Similarly, other end of polymer has ribose free 3OH group, which referred as 3' polynucleotide chain. फातिमा समझ में आई आपकी? चल रही है? चलो गुड। अब देखो हम लोगों ने कहाँ तक काम कर लिया है, ये सारे काम हो गए आपके। अब यहाँ पर देखो, इन आरएनए एवरी न्यूक्लियोटाइड रेसिड्यू हैज एडिशनल ओएच ग्रुप एज टू सेकंड पोजीशन। तो ये अब आपके लिए बच्चों वाली बात नहीं होगी। कार्बोहाइड्रेट में ही आपको मैं राइबोज और डीऑक्सी राइबोज बताया था।
तो सेकंड पोजीशन पर वहां हुए चौथे बच्चे। अब देखो विदाउट स्ट्रक्चर जो मैं कार्बोहाइड्रेट में कर रहा था, उस समय कुछ बच्चों के दिमाग में आया होगा जो ये बहुत एक्स्ट्रा हो रहा है या क्या हो रहा है। वो नहीं होगा तो यहाँ पर रखना पड़ता, फिर हमारी समझ में ही नहीं आती मैटर यहाँ क्या हो रहा है। तो आई थिंक यू माइट हैव फील दिस डिफिकल्टी ड्यूरिंग 12th क्लास। इंपॉर्टेंट करके काम तो चल जाती है बोर्ड में, लेकिन कंपटीशन में फंस जाती है। अब यहाँ की मैटर ये हिस्टोरिकल मैटर तो अभी मैं नहीं किया, ये करेंगे। अब यहाँ से देखो डबल हेली, हम अब इस पार्ट पे आ रहे हैं आपकी जेनेटिक्स में, ये पार्ट। अब दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को जोड़ना है, डबल स्टैंडर्ड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। इस पे आ रहा हूं बच्चे, इस पे अब आपको ये गौर करना है। जेनेटिक्स ही शुरू किया मैं बायोमोलिक्यूल्स, और वहां से कॉन्सेप्ट देके मैं आपका इसके जेनेटिक्स में एंटर कर गया। ठीक है, अब ये इस पर बात करेंगे। ये 97 पेज है। अब यहाँ पर आने में ये देखिए स्ट्रक्चर है ये पूरे। अब इस पर यहाँ तक जब कंप्लीट होगी तभी आपका ये चलेगा। ठीक है, अब बच्चा यहाँ देखो ए और टी के बीच 2 बाउंड है और सी और जी के पास 3 बाउंड होता है। तो बुक भी इतना ही स्ट्रक्चर बना के दे दिया। अभी मान लो ए और टी के बीच 2 हाइड्रोजन बाउंड, सी और जी के बीच 3 बाउंड। लेकिन मैं बच्चे क्वेश्चन पूछ लूं ये कैसे, तो हमारे बच्चे को पता होता है यहाँ क्या कंपल्सन होगी जो 3 बाउंड होगा, और यहाँ क्या कंपल्सन होगी जो 2 बाउंड होगा। तो अब मैं वापस चलता हूँ बोर्ड पे टू क्लैरिफाई ATCG बाउंड फर्स्ट, और इस पूरे को मैं डिस्कस करूंगा। हेडिंग लिख लो, डबल स्टैंडर्ड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। आई एम स्टॉपिंग द sharing because you can't use both simultaneously perhaps. अब देखो मुझे डबल हेलिक्स में ऐसे करके ये दिखा दिया। ठीक है, ऐसे लाइन कर दिया। यहाँ है ए, यहाँ डबल करके टी, और यहाँ सी डबल करके ट्रिपल करके जी, आगे बढ़ गया। बट अब यदि हमारे बच्चे ये पूरे स्ट्रक्चर किए हैं तो उनको ये पता होना चाहिए 3 बाउंड क्यों आया, यहाँ 2 बाउंड क्यों आया, और उसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है जेनेटिक्स। तो ये देखो अब हेडिंग में एक बनाऊंगा और हिंट्स दूंगा, फिर दूसरा बनाऊंगे। अब डीएनए डबल हेलिक्स, अभी तक हमको लास्ट में इस पर आना होगा। जो आप पहले स्ट्रक्चर देखते हैं, मैं धीरे धीरे आ रहा हूँ इस स्ट्रक्चर। तो अब पहले हम ATCG के बीच में बाउंड है, AT बाउंड। हेडिंग लिखिए AT बाउंड। टू सी द बाउंड, ये डबल और ट्रिपल क्या होगा, तो हैव टू यूज अगेन इंडियन फॉर्मूला 1166। यानी हम ऐसे स्ट्रक्चर बनाएंगे जो 1 के सामने 1 और 6 के सामने 6 आएगा। अब देखो एक बच्चे ने पूछा था नोमेनक्लेचर में, तो मैंने कहा था आई एम यूजिंग ओल्ड कन्वेंशन। अब तो ये ग्रीन वाला दिख रहा है ना उरोज, इज इट विजिबल ग्रीन कलर? यस, उसमें ब्लैक तो कंट्रास्ट होता है, लेकिन ये खत्म है। अभी मैं रेड और ग्रीन करके ही बनाऊंगा। तो हमने 116 से हमको समझा लेते हैं। यदि ओल्ड वाली नई वाली कन्वेंशन करते तो ये फॉर्मूला मैंने लगा सकता था समझाने। अब हम यहाँ एडेनिन का स्ट्रक्चर बनाएंगे ऐसे, और थायमीन का जो 1 नंबर इनके 1 नंबर, 6 नंबर इनके 6 नंबर के पास आ जाए, ऑटोमेटिक 80 बॉन्ड मुझे दी। अब पहले मैं यहाँ बना लूं।
सिर्फ मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, तो ओरिएंटेशन चेंज कर रहा हूँ, 1 के सामने 1, और अब NCN हम इधर लेंगे, NC और N। अब मुझे एडेनिन बनानी है, तो यहाँ पर लिख लेंगे N, यहाँ H, यहाँ भी H। अब देखो ये सारे इधर के बॉन्ड में पूरा नहीं कर रहा हूँ, वो पहले ही कर दिया था, वो आपको कर लेना है। 1 2 3 4 5 6, हाँ 1 और 6 में इन्वॉल्वमेंट हो रही है, तो वहां की बॉन्ड को हमको जरूर देखना। तो यहाँ पर एमिनो है, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड 1 2 3 4, इनका भी पूरा हो गया, ये एडेनिन हो गया। इधर वाला अपना बॉन्ड पूरा करना, मुझे 1 और 6 की कुछ देखिए। अब यहाँ पर मैं बनाऊं, इनकी पेयरिंग होगी थायमिन से। सी सी सी, यहाँ M, यहाँ C और यहाँ M। 1 2 3 4 5 6 थायमिन है, यहाँ 2 6 डाइऑक्सी 5 मिथाइल। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर नाइट्रोजन में इनके 4 1 2 3 4 हो गए, नाइट्रोजन का नहीं हो रहा है, तो यू हैव टू राइट H। इनकी भी जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं यहाँ लगा देता हूँ। अब यहाँ देखो हमने क्या कहा, फॉर्मूला 1166। तो अब यहाँ देखो, जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट में डिस्कस किया था, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, न्यूक्लियोफाइल्स की तरह काम करेगा, इस एडेनिन की एक H को भेज देगा अपने ये एक बॉन्ड। फिर यहाँ पर नाइट्रोजन डबल बॉन्ड है, आपने न्यूक्लियोफाइल्स में पढ़ा होगा, ऑक्सीजन नाइट्रोजन क्लोरीन। यहाँ पर देखो हमारे पास ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है, अब ये इनको खींचेगा, खींच दिया, तो ये आपका बन हो गया ANT। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड है, ये इनके साथ नहीं हो सकता, यहाँ पर नहीं बनेगी, ये है ANT। अब ANT बनाओ, उसके बाद C और G आप प्रैक्टिस करोगे, फिर बनाएंगे। हम इधर का बाउंड मेंटेन नहीं क्यों बच्चे, जब समझ में आ जाएगी तो ये सारे बाउंड मेंटेन कर लेंगे, आप छोड़ेंगे नहीं। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ ANT। देखो बनाने से पहले मैं कह दूं, जितनी हाइड्रोजन बाउंड होगा उनकी मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगी। मोर द हाइड्रोजन बाउंड, मोर विल बी द मेल्टिंग। चलिए पहले इसको बनाओ, हो जाए तो लिखो डन, उसके बाद CG का आप करोगे। और ये मैटर कहाँ का है फातिमा, 12th पेज का 97, वी आर डूइंग जेनेटिक्स। चलिए बैटन ने बना लिया है, तो अब आप एक अलग स्ट्रक्चर बनाओ बच्चे, पेंसिल, जो ये होगा गुआनिन, ये होगा साइटोसिन, एंड ट्राई टू मेक द बाउंड। जिनका ये हो जाए तो अपने से CG बनाने की कोशिश करें, फिर मैं बनाऊंगा अभी और कंपेयर करेंगे।
हाँ बच्चे, तो ये वाली बन गई फुटोज सलील, समझ में आ गई। तो ये बन गया, तो फातिमा का भी फातिमा बानो ने बना लिया। तो बेटा अब सीजी तो बनाओ, वो बन गया तो बोलो मैं इसको कन्वर्ट करूं, ट्राई टू मेक। अब देखो उसके बाद जेनेटिक्स कितनी आसान हो जाएगी आपकी मॉलिक्यूलर, जिसको आप गड़बड़ कहते थे वो सबसे इंटरेस्टिंग होगा। 1-2 दिन तो लगता है, मुझे भी पता चलता रहता है, जो उससे 1 दिन 2 दिन बच्चे कंफर्टेबल नहीं फील करते, उसके बाद सही हो जाता है। बच्चे अपने आप करते हैं, मेरे काम नहीं होते। चलो बच्चे अब देखो, जनपित डन, गुड। अब 3 बॉन्ड की बात देखें। अब देखो बच्चे, अब आपको पता चलेगा कि हम लोग क्यों धीरे धीरे काम पे हैं, नहीं करते तो नहीं होगा। अब इसको हटाया, इसको भी हटाया, इसको भी हटाया, इसको भी हटाया। अब रिकॉल करते हैं हमने गुआनिन में क्या क्या था। तो योर फ्रेंड गुआनिन डोंट लाइक द कैप ऑफ एमाइनो, और उसने उसको पॉकेट में रख लिया था NH2। तो अब यहाँ पर रख लिया था, तो अब और इसने पहन लिया था ऑक्सीजन की कैप। जैसे यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आया, यहाँ आपको हटाना पड़ेगा, फिर इनके लिए H लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए, इनका 1 2 3 4 पूरा हो गया। हमने कहा था इनकी ग्वानिन का दोस्त था साइटोसिन, शेक हैंड करने के लिए ये पॉकेट वाले सर पर और सर वाले पॉकेट में। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 2 3 ही बाउंड है, तो बाउंड जहां पर हमको अभी काम हो रहा है वहां की बाउंड को मैं चेक कर रहा हूँ, बना रहा हूँ। जिसका काम नहीं हो रहा है उसको छोड़ जा रहा हूँ। आप लोग कॉम्पिटेंट हो, इतना कर दोगे, लेकिन मेंटेन कर दो। अब देखो, जब ये दोनों आएंगे तो क्या होगा, ये न्यूक्लियोफाइल्स है बच्चा, इसके बीच देखो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। अब यहाँ फिर ये डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, ये भी न्यूक्लियोफाइल की तरफ क्या, दो तो बन गए। अब उस समय में क्या हुआ था, ये 2 वाले नहीं हुए थे जी। अब यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर एमाइनो, तो ये एक बॉन्ड बन गई यहाँ, इसलिए G और C के बीच ट्रिपल बॉन्ड। गुड, अंडरस्टैंड। यही चीज शॉर्टकट में दिया 97 पे, जब बना लें। So remember one thing, DNA having more CG content, we having more melting point. फातिमा कर रहे आप CG, ठीक है। तो अब देखो, आप लोगों ने इतना कर लिया और आपको पता चल गया जो चुपके चुपके मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स हो रही थी। और बीच में अब ये चलती रहेगी, बीच में एमिनो एसिड प्रोटीन बताना पड़ेगा, तब चल के प्रोटीन सिंथेसिस भी समझ में आए, DNA वाली पार्ट। और हमको यहाँ पर एमिनो एसिड का भी, प्रोटीन का भी चाहिए, क्योंकि आपने ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन में देखा होगा पेज नंबर 115 पर पॉलीपेप्टाइड चेन बन रहा है, तो उसकी भी थोड़ी सी नॉलेज चाहिए। तो ये पार्ट तो हो गई, हम डबल हेलिक्स में आ जाते, आई थिंक हो जाएगा अभी, वी हैव ए टाइम, DNA तक निकल जाएगा काम। अब देखो इनका 1 और 1 के बीच अब ये क्या हुआ, सपोज 2 DNA स्ट्रैंड्स, एक DNA स्ट्रैंड यहाँ है और दूसरी स्ट्रैंड यहाँ है। अब यहाँ पर यदि A है तो ऑटोमेटिकली इट विल बी T,
यहाँ C है तो इट विल बी G। ये कुछ भी हो सकता है, इसमें आप अपना रैंडमली बना सकते हैं, हैज नथिंग टू डू। ये स्ट्रक्चर दिया। अब यहाँ 5 और यहाँ 3। अब बच्चे देखो, आपके पास एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, तो 1 के सामने 1 और 6 के सामने 6 लाने के लिए, मतलब दिस इज द वन स्ट्रैंड, ऐसे वन स्ट्रैंड। तो 1 के सामने 1 और 6 के सामने 6 लाने के लिए स्टैंड को आपको यू करना पड़ेगा, तब ATC की बाउंड बनेगी। तो अब ये जो होगी तो ऑटोमेटिकली ये अलग, ये 3 प्राइम होगा, ये 5 प्राइम होगा, तभी 1 के सामने 1, 6 के सामने 6। तो इस तरह से दो DNA स्टैंड तो बन गए। अब दिस इज द, ये दो जो ये शुगर फॉस्फेट बैकबोन है, ये भी शुगर फॉस्फेट बैकबोन है। देखो ये दोनों क्या है, शुगर फॉस्फेट बैकबोन। अब आगे का काम करें। अब व्हाट हैपेंस इन द लिविंग सिस्टम, जो DNA सेल के अंदर है, वो इस तरह से ATCG ऐसे रहते नहीं है, नेचुरल वे में नहीं रहते। ये ATCG जो है, ऐसे ATCG इट रिमेन टिल 36 डिग्री। ये दोनों स्टेबल होने के लिए एक दूसरे से 36 पर, फिर इससे नीचे वाला इससे 36 पर, फिर इससे नीचे वाला उससे 36 पर। तो आपके पास एक ऐसी सीढ़ी बन जाए लंबी, और हर को 36 पर रोटेट कर दो आप, तो कैसा स्ट्रक्चर बनेगा इमेजिन करिए। ये घूमेगा या नहीं घूमेगा? तो वो बच्चे आपके, एक मिनट कन्वर्सेशन ले लूं मैं, चैट बॉक्स में चलो। तो अब देखो, ये DNA जो है, पहले हम बना लें, फिर इस पर डिस्कशन होगी। अब देखो, इसको मैं क्यों घुमा रहा हूँ और क्यों घुमा हुआ आप देखते हो। ये तो आजकल बच्चे 4th 5th इस स्ट्रक्चर को देखते आते हैं, बट ये कैसे बना उसके लिए 3 डेज लग गए हम। तो 1 end is 5, another will be 3। तो ये 5 और ये 3, यहाँ A तो यहाँ T, यहाँ C, यहाँ G, फिर T, फिर A, C, G, T, A, लाइक ऑन, इस तरह से बना हुआ। और ये चीजें अभी जो हम पढ़ रहे हैं, ऑलरेडी हमारा 12th क्लास जेनेटिक्स में है। ये 151 11th में था। ये आपकी केमिस्ट्री के बायोमोलिक्यूल्स में है। तो एक डिस्कशन आप कर रहे हैं, आपको 3 जगह ये हो रहा है, और बच्चे ये होनी चाहिए थी 11th में। एनीवे, अब देखो ग्रेस्पिंग हो रही है, क्योंकि 12th देते हैं बच्चे, तुमको समझ में जल्दी जल्दी आती है। तो अब क्वेश्चन आई, ये घूम क्यों गया? रीजन इज दैट, लिखाऊंगा, पहले आप समझें, समझना है। मैंने पहले बोला रखने की चीजें नहीं है। दिस इज द बेस पेयर, 2 बेस पेयर्स रिमेन टिल्ट, ऐसे घुमा रहता है 36, इससे नीचे वाला फिर उससे 36। तो एक लंबी वाली सीढ़ी, कपड़े वाली सीढ़ी, जिस पर जोकर चढ़ता है, ऐसे करके सर्कस में देखा होगा। तो हर सीढ़ी को आप 36 पे घुमा दो, तो आपके पास कैसा सीढ़ी मिलेगा जी? टेढ़ा टेढ़ा। चढ़ने के लिए आपको ऐसे ऐसे घूमना पड़ेगा। ये तो 2D है, तो आपको लगता है ये क्रॉस हो रही है, क्रॉस क्रॉस नहीं हो रही। इमेजिन इट। यदि हम 3D में देखें इसको, ये एक दूसरे पे नहीं क्रॉस कर रहा है। फिर मैं आपको इमेजिन कराता हूँ, जो एक सर्कस वाली सीढ़ी है, कपड़े कपड़े वाले, उसमें स्टेयर
लगे होते हैं जिस पर जोकर चढ़ता है, हर स्टेयर को थोड़ा थोड़ा घुमाते चले जाओ, ऐसे ऐसे हेलिकल स्ट्रक्चर बनेगा या नहीं बनेगा, वही डीएनए के स्ट्रक्चर होते। तो आज इनकी लेवलिंग कर देता हूं और अगले में डिस्कशन होके पेज नंबर 99 तक कंप्लीट हो जाए और उसके बाद स्पीड पकड़ लेगा जेनेटिक्स। फातिमा was worried about genetics. You are doing genetics. और बीच बीच में जिस मॉलिक्यूल का काम पड़ेगा उसको रोक के वहां समझा लेंगे, जैसे प्रोटीन समझा लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो बच्चे पहले इसके लेवलिंग कर ले हम लोग, और इस डिस्कशन विल बी ऑन नेक्स्ट। यहाँ से घूमना शुरू हुआ जी, ये कंप्लीट टर्न डिस्कशन अगले दिन होगी। अब डायग्राम लेंथ होती है 3.4 नैनोमीटर, 12th में लिखा है नैनो इतने नैनोमीटर, और 11th के क्लास में इसको लिखा है एंगस्ट्रम में। तो कंपटीशन दोनों को पूछ ले, में से कोई यूनिट पूछ ले आपको। 12th बुक हैज डिस्कस नैनोमीटर, 11th हैज डिस्कस एंगस्ट्रम, मैटर इज द सेम। तो ऑटोमेटिकली पहले हम नोट कर लें, 2 बेस पेयर पूरी होगी यहाँ से यहाँ, इनसे 10 टाइम लेस, और 3.4 एंगस्ट्रम। और ये बैकबोन टू बैकबोन, ये 20 एंगस्ट्रम, 2 नैनोमीटर। तो आज ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बना लो, और अगली क्लास में इसको लेके इसकी पूरी डिस्कशन करते हुए हम चले जाएंगे 99 पेज तक। मैं आपको बताऊं कहां तक पढ़ के रखेंगे आप, अभी दिखा देता हूं, पैकेजिंग ऑफ डीएनए तक। ये देखो, ये अब हो गया। ये देखो अभी हम लोग यहाँ पर, ये तो कैप्सूल की तरह दिखाया है और हमारे बच्चे इसको पूरी बाउंड की तरह देख लिया, पूरे बाउंड की तरह देख लिया, ये चीज पूरे बाउंड की तरह देख लिया। इसको डिस्कशन करेंगे। अब देखिए ये अलग चीजें हैं, अब हम इस पे आएंगे। देखो उस डीएनए की पैकेजिंग, तो अब आप 96 से पढ़ रहे हैं, इस 99 पेज और 100 पेज के यहाँ तक पढ़ के रखोगे, ज्यादा करने की आपको जरूरत नहीं। धीरे धीरे आगे हम स्पीड पकड़ेंगे, वहां से ऑब्जेक्टिव होता जाएगा। तो अब नाउ आज की बातें में कोई किसी को प्रॉब्लम है तो आप लिखें, कोई किसी बच्चे को एक भी डाउट है तो लिखेंगे। सलील, अबिदन, फातिमा, उरूज, गुलाम, ओके। आज की डिस्कशन क्लियर? नो डाउट, वेरी गुड। डाउट है तो हेजिटेट नहीं करेंगे। अब डाउट होगा नहीं बच्चे, शुरू में 1-2 दिन होता है, सबके साथ होता है। काफी बच्चे हैं, फीडबैक दस ही देते रहते हैं। चलो ठीक है बच्चे, तो खुदा हाफिज, टेक केयर।